Very good morning, my dear students. Today we will be learning about chapter number 9, freedom, fundamental rights, directive principles, policies, and we've already learned about 2 points. Number 1 was right to equality. Then the second point is right to freedom. We have already discussed it elaborately. Now, after completion of the right to freedom, we have read it elaborately. We should move to right against exploitation. What is the meaning, the word exploitation? What is the meaning of the word exploitation? Exploitation actually means to exploit somebody or because of their needs. If we exploit somebody or if we get exploited, both the things are wrong in the eye of the law. Sometimes when we are of young age, you've seen many young kids doing work at hotels. They are begging. Begging is a crime, but still many of the kids you have seen at your nearby places where you go for fun, over there in a hotel also, in a local tea shops, very young kids are getting exploited, or minimum sum of amount is given to them. They work equal like other people, but still these kind of exploitation is going on. Or human trafficking is a common practice. Many people, though it is a crime, but many people sell their kids for drudgery. एक साल 1.5 साल तक के लिए नौकरी करने के लिए छोड़ देते हैं 12-13 साल के बच्चों को, and then and after 12 or 13 months they come and they take away all the earnings of the money of the earnings of the kid and they went away. These kind of things are very common in poor people. So that is a very important thing, that at work also, if you are a learned person, you are not getting exploited. Whatever you are doing, it is for your bread and butter. Whatever, if the management of it is, I'm not saying the management is wrong or they are this type of thing. Many 99.9% managements are helpful. They want their organization to grow. They want their employees to be happy. But sometimes, due to some policies, it happens that the worker or employee gets exploited. He works extra time for extra money, but he didn't get any. And minimum wages are not being given to those people. So these things are very important for us. So that is the reason the Constitution have chosen the path of the right against exploitation. The main objective of Constitution is to see any person does not suffer exploitation. The main purpose is that they should not suffer because of any management or any person, individual, personality, firm or factory or anything of any other or other person, and exploitation free society is established. That is objective of the Constitution through this right. Human trafficking, I've told you about the human trafficking. Women and mostly children and women are sold in other countries also for their body parts. Most of the times the eyes, the kidney, liver, skin, even skin, they sell these people in a very meager amount because the parents are poor, or mostly they are kidnapped. So they don't have any right, they don't have any understanding of the world. They are kept somewhere else in other countries, so they are sold for the kidney, body parts and other things. So it's a very it's a simple data कि आप शायद पता आप करोगे तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे अगर कोई चीज़ सेल और बाय हो रही है तो वो ह्यूमंस है सबसे ज़्यादा. उसका रीज़न है बॉडी ऑर्गन्स आर वेरी एक्सपेंसिव and the rich people can get whatever they want, but it is against the law. Then number second thing is drudgery.
ड्रजरी मीन्स आप देखेंगे तो ड्रजरी का मीनिंग है कि एक somebody has taken a limited amount of sum from somebody। क्या मैं आज से 100 साल पहले किसी से 100 रुपये लिए होंगे कि भाई ये फॉर दिस वर्क फॉर मेरी बेटी की शादी है तो आई वांट दिस 100 रुपीज़। तब उसके ऊपर वो ब्याज लगा के इंटरेस्ट लगाते 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 द पर्सन हैज़ गिवन ऑल इज़ लाइफ, तो कुछ हुआ नहीं, तो भी वो पैसे चुके नहीं, मूल के इंटरेस्ट बढ़ता रहा और वो पैसे चुक नहीं पाए। तो उसके जो बच्चे हैं वो ड्रजरी कर रहे हैं अभी भी, बिकॉज आवर फादर हैज़ टेकन द लोन। ये बहुत सारे पुराने ज़मींदारी सिस्टम के अंदर इट वॉज हैपनिंग। देन स्लेवरी, लोगों को बंधुआ मजदूर बना देना, ज़बरदस्ती पकड़ के कहीं से ख़रीद के ले आए और उनको बाउंड करके बांध के शैकल्स के अंदर, तो काफ़ी मूवीज़ में भी आपने ऐसा देखा होगा, पहले ऐसा करते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो ऐसी प्रैक्टिस कैलकाटा के अंदर होती थी पहले, जब नील की खेती की जाती थी तो इट वॉज डन। एंड फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती मजदूरी कराना आर बैंड, ये सब बैन है। द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर किसी ने इस चीज़ को वायलेट किया तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रजरी, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर आर बैंड। द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन, सबसे बड़ी बात, इलीगल ट्रेड ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। फोर्स लेबर और इम्पोज स्लेवरी, या तो उनको फोर्स लेबर कराया जाए या फिर इम्पोज स्लेवरी, वर्क विदाउट पे, और काम के बदले 1 रुपया भी नहीं दिया जाए। एंड द ओल्ड ड्रजरी सिस्टम हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट। ये ओल्ड ड्रजरी सिस्टम है वो सब खत्म होना चाहिए। टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन मिनिमम वेजेस, फोर्स्ड और इम्पोज लेबर इज़ अ पनिशेबल एक्ट। अब सबसे बड़ी बात है टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम। किसी भी, कोई सिंपल सा है आपके घर आया, आपने उसको बोला कि एक लॉक, इफ़ इज़ अ लॉक स्मिथ, लॉक सही कर लिया उसने, एंड यू आर नॉट विलिंग टू पे, बोले नहीं मुझे मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तुमने टाइम लगाया थोड़ा, ऐसा करके कोई भी बहाना निकाल के उसका पैसा ले लिया, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। तो वो उनका हक है, वो उसे मिलना चाहिए। और पेइंग देम लेस, जो उनके मिनिमम वेजेस हैं पहले पूछ लेने चाहिए, मिनिमम वेजेस से लेस पे नहीं करना है। फोर्स्ड, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, किसी को बंदूक की नोक पे काम कराना, और इम्पोज्ड लेबर इज़ अ पनिशेबल एक्ट। ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना पनिशेबल एक्ट है, ठीक है। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, माइन और एनी डेंजरस प्रोफेशन, गैराज, होटल, और कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट। 14 साल से नीचे कोई भी बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, नॉट इन अ माइनिंग इंडस्ट्री। माइंस होती हैं, आपने देखा होगा, दे आर वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस। आप देखेंगे या तो स्टीप माउंटेन्स के ऊपर होती हैं जहाँ पर ग्रेनाइट या मार्बल को कट किया जाता है, या फिर आप देखेंगे ज़मीन के नीचे जहाँ कोल को एक्सकवेट किया जाता है। और एनी डेंजरस प्रोफेशन, किसी भी डेंजरस प्रोफेशन के अंदर बच्चों को नहीं डाला। किसी गैराज के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ पे अलाउड नहीं है, होटल में भी अलाउड नहीं है, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज हाउस होल्ड, और घर के नौकर पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंसेज। ये चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर इसको, ये सारे के सारे पनिशेबल ऑफेंसेज। मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी सॉट, मैंडेटरी सर्विसेज सॉट की जाएंगी फ्रॉम एनी पर्सन इन द पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर of the state military services in any fields irrespective of religion, gender, caste or class or without a remuneration. Mandatory services सॉर्ट की जाएंगी किसी भी इंसान से for the purpose of public welfare of the state military services, वो चाहे तो स्टेट मिलिट्री सर्विस में काम कर सकता है, और एनी फील्ड, किसी भी रिलीजन, जेंडर, कास्ट और क्लास का हो वो आ सकते हैं। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, can promote and propagate the same is mentioned in the provision of the Constitution of India। अब सबसे बड़ी बात कि ये बहुत समझने लायक बात है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, मल्टीपल रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कैन प्रमोट, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट कैसे करेंगे रिलीजन को? बाय टेलिंग अदर पीपल अबाउट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ देयर रिलीजन, उसको प्रमोशन करते हैं। कई जगह आप देखेंगे हिंदू कथाएं कराते हैं, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का प्रमोशन ही हुआ, प्रवचन करवाना। क्रिश्चियंस जो बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, बाइबल के सर्मन्स बताते हैं। इस्लामिस्ट होते हैं वो तबलीगी जमात के साथ जाके
उनकी जो गुड डीड्स हैं मुस्लिम के अंदर वो बताते हैं और ज़्यादा धर्म वालों को। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन प्रोपोगेट कर सकते हैं, पूरा प्रोपेगेंडा बता सकते हैं कि हम ये इस धर्म से हैं और हम पीस का धर्म है, वी आर पीसफुल। तो यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दिस, दैट इज़ योर चॉइस, यू कैन change. But this right is to be enjoyed within permissible limits so that it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society. अब ये जो राइट है वो थोड़ा परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, एकदम लिमिट परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे उठ के आप स्पीकर बजाने लगे, जोर जोर से प्रोपोगेट कर रहे हो भैया हमको तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब पब्लिक को किसी को परेशानी ना हो चीज़। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोरालिटी, किसी भी टाइप की मॉरल वैल्यूज़ का डिवैल्यूएशन ना हो, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और हेल्थ ऑफ द सोसाइटी सबसे बड़ी चीज़ है। कोई ऐसा अंधविश्वास के अंदर ना पड़े कि ये पानी पीने से बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो पानी कितना ही गंदा हो और सभी लोग झूठा कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। द रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स और प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। अब रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, जो ऑफरिंग्स हैं, प्रेयर्स हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं की, आर नॉट इंक्लूडेड। चाहे तो आप गैदरिंग कर सकते हो, ऑफरिंग्स पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कई लोग करते हैं, प्रेयर्स प्रार्थना करते हैं, अलाउड है। स्कूल में भी हम प्रेयर्स करते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। अब इंडिया का कोई अप्रोप्रिएट रिलीजन है नहीं, हिंदू नाम इसका हिंदुस्तान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू रिलीजन को वो सभी धर्मों के लिए इक्वल है, सेक्युलर है। ऑन द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलीजन और सेक्ट। किसी एक धर्म के ऊपर वो नहीं चलते हैं। द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स। स्टेट किसी के भी रिलीजियस मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। और रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी ग्रुप, और किसी के रिलीजियस बिलीफ के ऊपर भी कोई आक्षेप टिप्पणी, कोई बात नहीं कह सकते हैं। वो उनका बिलीफ है, दैट इज़ देयर चॉइस। द रिलीजियस ग्रुप्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एनी religious organization and can manage and administer them for religious and philanthropic aims. इसको समझना, the religious group have been given freedom to establish, जितने भी religious groups हैं उनको सबको क्या दिया गया, have been given freedom to establish any religious organization. If they want to establish a religious organization, you have seen Aksharwadi, it's a religious organization to propagate the dharma, the Hindu dharma. तो हिंदू धर्म के लिए वो अपने हिसाब से एक बेटर कॉन्शियसनेस, बेटर एटिकेट्स इन द सोसाइटी वो लाने की ट्राई कर रहे हैं। तो वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो बना सकते हैं, एंड कैन मैनेज एंड एडमिनिस्टर देम फॉर रिलीजियस एंड फिलैंथ्रोपिक एम्स। और वो चाहें तो उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका एक ट्रस्ट बना सकते हैं और लोगों को उसके साथ जोड़ सकते हैं अपने एम को ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए। देन the state cannot use the funds collected through public taxes or public fund for the benefit and development of any specific religious enact. अब state उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगाता है, सबसे बड़ी बात। these things are tax free। आप जितना दान देते हो मंदिर में, वो मंदिर के अपलिफ्टमेंट के लिए, मस्जिद में देते हो, चर्च में देते हो, गुरुद्वारे में देते हो, तो इट इज़ ओन फॉर देयर ओन अपलिफ्टमेंट। वो उसको बेनिफिट करेगा और वो उसी को ही वापस लौटा देते हैं भंडारा करके या जिस भी टाइप से वो, और उनके एम्स को फुलफ़िल करते हैं ताकि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मैक्सिमम जितने भी रिलीजन्स हैं आप देखेंगे, दे आर फॉर द ह्यूमन्स, ह्यूमैनिटी को ही प्रीच करते हैं कि गुरुद्वारे में आप जाओ तो आप खाना कैसे बनाएं, खाना लेके लंगर के अंदर आप बैठो तो आप कोई भी भूखा नहीं जाएगा वहाँ से, ठीक है। मुस्लिम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, वो सबको शांति का संदेश देते हैं। फिर आप देखेंगे हिंदू के डिफरेंट बिलीफ्स हैं, वो अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते हैं, वो भी अहिंसावादी हैं। तो बस बहुत सारे सब रिलीजन के अंदर, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, देयर आर मैनी रिलीजन्स विच वी शुड लर्न फ्रॉम देम। बाइबल देखेंगे, बाइबल्स के अंदर भी आप देखेंगे तो वो बोलते हैं कि हम लव दाय नेबर, हमें अपने सोसाइटी के लोगों से प्यार करना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति पीसफुल रहना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू द रिलीजियस बिलीव्स। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन ग्रांट इन एड स्कूल्स होते हैं, जैसे कि आप भावनगर में आप देखेंगे तो KPS इज़ ए ग्रांट इन एड स्कूल। कुछ ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू कि इतने बच्चे आपके हैं तो हम वी आर गोइंग टू पे 50 लाख रुपीज़ फॉर देम। उनका पेमेंट के, टीचर की पेमेंट वगैरह वगैरह वो गवर्नमेंट करती है, ग्रांट इन एड बोलते हैं। अब वहाँ पे किसी टाइप का प्रोपोगेशन नहीं हो सकता, ठीक है। वहाँ पर कोई हिंदुओं का ही स्कूल है
या मुस्लिम्स बच्चों के लिए ही पढ़ाया जाएगा, वो नहीं चलेगा। वो आप उसके लिए अलग से खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन और कंपेल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन और अटेंड एनी रिलीजियस मीट। कोई किसी बच्चे को कंपलसरी नहीं है कि वो किसी रिलीजियस एजुकेशन को सीखें या अटेंड करें रिलीजियस मीट को। एज आई वॉज स्टडिंग इन CBSE, आई बिलीव, आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज इन 5th or 6th standard, I was in St. Paul's, Jodhpur, Rajasthan. At that time, that was a CBSE. And St. Paul's में एक quality थी कि we have got a different subject that was known as, that by choice if you want to take that subject. That was catechism. Catechism is all about the Christianity. तो वो subject अगर आप लो तो आपका choice था if you want to take it or not. और एक environmental science का कुछ एक और subject और भी था। उस टाइम पे environment होता नहीं था, सोशल स्टडीज़ ही था। तो ENV और कैटेकिज्म में से कोई एक चूज़ करना था, तो आई चोज कैटेकिज्म एंड आई हैव रेड इट फॉर 2 years। एग्ज़ाम भी होते थे, उसका सब्जेक्ट भी था। इट वाज अ वेरी फाइन सब्जेक्ट। तो वो इट इज़ ऑल अबाउट द, पर वो दैट वाज बाय चॉइस। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने नहीं लिया था, तो वो कोई कंपेल नहीं कर सकता हमको कि आप ये रीड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई MA आई हैव रेड मैनी बुक्स। तो बहुत सारी उर्दू बुक्स भी मैंने पढ़ी, बहुत सारी अरबिक बुक्स पढ़ी। तो मुझे नॉलेज हुआ, आई गेट टू नो दैट दीज पीपल हैव गॉट देयर अदर पॉइंट ऑफ व्यू, रशियन बुक्स, मैनी बुक्स। तो आई गेट टू नो मोर अबाउट द लिटरेचर एज वेल एज द वर्ल्ड हेरिटेज, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। इट ओपन्स आवर माइंड। तो ये सेम कॉन्सेप्ट इज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आप पार्टिसिपेट किसी भी रिलीजियस मीट में कर सकते हैं। Then cultural and education rights. People of various religions, various languages and cultures live in India. The people of India have a right to preserve their language, script, cultural identity and ethnicity. अब इंडिया में के अंदर वेरियस रिलीजन्स के लोग हैं, वेरियस लैंग्वेजेस। गुजरात के अंदर ही आप देख लो, काठियावाड़ी है, महसाणा की है लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, एंड कल्चर्स अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज। वी हैव गॉट देयर राइट टू प्रिजर्व इट। बहुत सारे पारसी नवसारी में आके बस गए, ठीक है, उडवाड़ा में आके बस गए। तो स्टिल नाउ, अप टिल नाउ दे बिलीव इन देयर बिलीव्स। तो वो अभी भी उडवाड़ा के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे पारसी कम्युनिटी आपको सेम एज दैट जो 5000 साल पहले जैसे आए थे वैसे के वैसे आपको दिखेंगे। सो उसके बाद उनके ऊपर पोर्चुगीज़ इंप्रेशन बहुत पड़ा, तो वो उनके खाने के अंदर बहुत इफेक्ट आ गए। तो ये सब हमारे खाने में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक वर्ड है बिरयानी, सभी लोग खाते हैं, वेजिटेबल बिरयानी या वॉट एवर जिसे ही बोलते हैं। वो एक टाइप का पुलाव वेजिटेबल, उसके अंदर एक प्याज को हम थोड़ा ब्राउन, डार्क ब्राउन करके फिर डालते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रिस्ता। ब्रिस्ता से वर्ड आया है बिरयानी। अब ये ब्रिस्ता कौन लाया? अरबिक ट्रेडर्स लाए। अरबिक ट्रेडर ने प्याज को सेकना हमको सिखाया। So these kind of things are because of various religion, various beliefs, various things accumulated within themselves, and then it became India. That is the reason of India. अब आप देखेंगे potato and chili. Potato तो स्पेन से हमारे पास आया। Then आप चिली की बात करें तो पोर्चुगीज़ लाए थे चिली। चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली इंडिया में होता ही नहीं था, कभी भी नहीं। पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट वन। तो वो स्पाइसेस के लिए हम लोग वहाँ से इंस्पायर होते गए। अभी आप देखेंगे आलू बिना समोसे के नहीं होता है, पर हमारे यहाँ पे आलू था पहले भी, 5000 साल पहले भी आप देखेंगे तो आलू को समोसे को संबुष्ट बोला गया है। संबुष्ट समोसा, समोसे के अंदर फिलिंग्स के अंदर मटर और ये सब चीज़ें होती थी, बट आलू नहीं था एट दैट टाइम। सो तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड, वी हैव मर्ज्ड ourselves and we have collaborated with different kind of religions and beliefs. That is the reason. That is our culture. People of various religions, various languages and cultures live in India. The people in India have the right to preserve their language, script, जो हमारी बोली है, cultural identity and ethnicity, जिस भी ethnicity के ऊपर। Any education institution which rely on the government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language or any other reason. किसी भी रीज़न से किसी को भी मना नहीं कर सकते कि भाई आप तो वेस्ट बंगाल से आते हैं, आप नागालैंड से आते हैं,
यू आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, यू आर फ्रॉम राजस्थान, या इस कास्ट के हैं, उस क्रीड के हैं, तो आपको मना कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको एडमिशन मिलेगा उनके मेरिट के हिसाब से, जिस बाकी सबको जैसा मिल रहा है वैसा आपको भी मिलेगा। इफ़ एनी इंडिविजुअल अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, then it is considered as a malpractice as per Act 1233। अगर कोई वोट करता है, इंडिविजुअल अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ malpractice। कोई भी वोट ना मांग सकता है किसी भी तरीके से कि मैं इस रिलीजन का हूँ, इस बिलीफ का हूँ, इस गांव का हूँ, तो आप मुझे वोट दीजिए। हालांकि इंडिया में यही होता है, बट इट इज़ malpractice, ये रॉन्ग है। एक्ट 123/3 इसके ऊपर लागू पड़ती है। एनी ऑफ द स्टेट कैन फ्रेम अ लॉ and provide the right to its citizen to form and manage any of the educational institute based on cultural or linguistic minority। Any of the state it can frame a law, एक law बना सकते हैं, provide the right to its citizen to form and manage any of the educational institute based on cultural or linguistic minority। linguistic minority के ऊपर आप अपना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The state shall not discriminate in giving educational grants, और state उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एजुकेशन ग्रांट्स में, और एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी जो बाकी सब जो स्कूल्स को मिलती है वही एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वैसा ही मिलेगा। फ्रॉम द स्टेट फंड टू एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई पारसी कम्युनिटी का है तो उसके अंदर भी वो उतना ही गवर्नमेंट अपना ग्रांट देगी। इन द स्टेट डिजायर्स टू टेक ओवर और कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, देन इट कैन डू ओनली आफ्टर गिविंग प्रॉपर रिटर्न्स। अगर स्टेट उस पर कब्जा करना चाहती है तो उनको उसका हक मिलना चाहिए, वॉट एवर दे हैव, उनकी जो ज़मीन का जो दाम है वॉट एवर है वो सब उनको मिलना चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं होगा। इन दिस वे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैव बीन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ये फॉर्मेट बनाया गया है ताकि लोगों के लिए ये बेटर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझना बहुत मुश्किल है और समझ ज़रूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे काम करती है, तो याद रखना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ से हमें शुरू करना है। हमारा जो पेज नंबर है 67 कंप्लीट कर लिया हमने, 68 इज़ द पेज नंबर वी हैव टू गो थ्रू। सो आई होप all of you are studying well, and if you've got any kind of a doubt related with the chapter, please feel free to ask. Thank you and have a nice day.